and say a few words. Give it up for Ruchika Kapoor. Very good evening. Over to you. Good evening, everyone. A very warm welcome to all of you on behalf of the team at Netflix and Team Kala. My name is Ruchika Kapoor Sheikh, and I am part of the films team at Netflix India. So today, as we launch the trailer of our fabulous, very ambitious film Kala, we've already had a great year with a stellar lineup of films, from Darlings to Jogi to the very recent Monica Oh My Darling, and we're hoping the momentum of fantastic content continues with Kala, which has been helmed by the extremely talented Anvita Dutt. This film is very, very close to our hearts for many reasons, but the top reason remains our return with Karnesh from Clean Slate Films, as well as the duo Tripti Dimri and Anvita from Bulbul, which was a tremendous success and broke many barriers and achieved many milestones across the globe when it released. Also, Kala is very special because we are thrilled to launch the debutante, Babil Khan. Welcome to the Netflix family, Babil. Welcome to the movies, Babil. And we're so happy that we could put such a stellar cast with such a visionary director together. We can't wait to share the trailer with you, which is going to surely transport you into a new world. Thank you so much for joining us today, and a huge shout out to the entire Netflix team, the team of Kala, especially Angel, for putting together such a stellar film. Welcome to the movies and have a great time. Thank you. बताना नहीं चाहिए. I saw the teaser. I actually got a glimpse of this world. मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ share. Good evening, everyone. Namaskar. Thank you very much for coming. I think हमारा काम बहुत आसान था. हमने पूरी पिक्चर अन्विता को दे दी और उनके साथ बहुत ही टैलेंटेड लोगों को इस पिक्चर में जुड़ने का मौका मिला. बहुत लंबा टाइम लगा हमको, ऑलमोस्ट 2 साल, दोनों कोविड की वेव्स राइड करके आज हम यहाँ पहुँचे हैं. सो हम चाहेंगे कि आपको हमारी ट्रेलर और अल्टीमेटली फिल्म अच्छी लगे. छोटी फिल्म है, बहुत ही एम्बिशियस फिल्म है, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं इसमें. बाकी अन्विता के हाथ. नमस्ते, थैंक यू फॉर कमिंग हियर. ये मेरी दूसरी पिक्चर है. It's still a big deal for me, and I hope it continues to be a big deal for me. Like Karnesh said, बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से बनाई है पिक्चर, और तृप्ति के साथ दूसरी बार बनाई है. She's amazing, she's my muse. And I have amazing talents working with me, not just the actors. Babil ka launch hai, Amit Syal, Swastika Mukherjee, but also my HODs, people like Amit Trivedi. पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक पिक्चर में the most successful lyricists of the countries have worked together to write the songs of the film. So Amitabh Bhattacharya, Swanand Kirkire, Kausar Murir, Varun Grover और मैंने एक गाने लिखा है इस फिल्म के लिए. And this film is obviously मेरा तो बच्चा है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार है. So I hope you like my favorite child as much as I do. So I think ट्रेलर दिखाते हैं because हमें बातें करना नहीं आता. तो चलिए फिर इंतजार किस बात का. We'll go back and we'll play the trailer of this much anticipated film Kala. In every sense of expression, give it up for Tripti Dimri. Hello. देखिए इन्होंने आपका नाम कहीं लिखा है. देखिए आप. Heartiest congratulations first up.
और इससे पहले कि हम आपसे बातें करें, हम आपके दो और को स्टार्स को भी बुला लेते हैं यहाँ पर प्लीज। हमारे जो अगले फनकार हैं, कलाकार हैं, वो भी एक उबर टैलेंटेड घराने से ताल्लुक रखते हैं, एंड इट्स हाई टाइम that this young man deserves his own spotlight. Please put your hands together for Babil Khan. Hi Babil, कैसे हैं आप? Heartiest congratulations. First up, कहीं पे भी बैठिए यार. Yes. अच्छा, हमारे जो अगले स्टार हैं यहाँ पर, वो हर जगह मौजूद हैं. He is omnipresent and omniscient, just like a wise Guruji. मूवीज करते हैं, वेब सीरीज करते हैं, शॉर्ट फिल्में करते हैं, एड्स करते हैं. ये भी कह रहे थे आज शो की होस्टिंग भी मैं करूंगा. मैंने कहा नहीं सर, हमें भी घर की EMI भरनी होती है, मत कीजिए. Ladies and gentlemen, give it up for the very, very talented Amit Sial. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing. हाँ, सबसे पहले तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं. यार एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार. मुझे मतलब माहौल में ऐसा लगा कि जैसा होता ना कि एक सुन से हो गया कि यार मतलब जैसे शौक उनको लगा है. इतनी खूबसूरत फिल्म है, इतना कुछ लगा. जिस शुरुआत जिस टोन पे हुई और फिर कहीं आप हमें ले गई और फिर जो पटक के आपने एक जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा एक सस्पेंस, थोड़ा सा थ्रिल भी डाला है. तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि हमें बातें करनी नहीं आती, आप ट्रेलर देख लिए. ट्रेलर अच्छा लगा कि नहीं लगा? पहले तो इनसे वो ले लेते हैं. शो ऑफ हैंड्स यार प्लीज. इनफैक्ट लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. क्या मुश्किलें आई? क्योंकि आप इन्होंने तो बताया कि 2 कोविड के थ्रू निकल के गए, लेकिन एक इस तरह का ईरा क्रिएट करने में अपने आप में चैलेंजेस हैं. इस तरह का अभिनय निकलवाना, एक पूरा माहौल क्रिएट करने के लिए कुछ एक अच्छी सी बताएं ना कि कैसा रहा आपका सफर? अच्छा, बुरा, टफ, कैसा रहा? मजा आया? बहुत बहुत अच्छा रहा. आई लव मेकिंग फिल्म्स. मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है, पढ़ना भी और सुनाना भी. तो मुझे तो बहुत मज़े आए. यस ऑफ कोर्स कोविड ऐसी चीज़ों की वजह से जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए मैं स्ट्रेस नहीं लेती, क्योंकि जो मेरे हाथ में नहीं उसके बारे में क्या सोचना. तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं थे. चैलेंजेस बस यही था कि हर मोमेंट आई स्टे ट्रू टू द स्टोरी. आई ट्राई टू टेल एन ऑथेंटिक स्टोरी. आई डू जस्टिस टू द फेथ ऑफ सो मेनी पीपल. मतलब नेटफ्लिक्स से लेके मेरे प्रोड्यूसर और जो लोग हाँ बोलते हैं पिक्चर को. बाबिल ने अपनी पहली पिक्चर के लिए हाँ बोला है मेरे को. तृप्ति ने हाँ बोला है, अमित सियाल ने हाँ बोला है, स्वास्तिका मुखर्जी ने हाँ बोला है, त्रिवेदी, ऑल द लिरिक्स, माय DOP, एवरीबडी, दे से यस टू यू, टू द स्क्रिप्ट. उस फेथ को जस्टिफाई करना हर रोज, दैट इज द ओनली चैलेंज, बिकॉज यू डोंट वांट टू लेट देम डाउन. यू डोंट वांट देम टू फील कि हमने गलत डिसीजन ले लिया. बस उतना ही. सो दैट्स इट. ये कह रही है गलत डिसीजन ले लिया. आपकी स्माइल बता रही है कि गलत डिसीजन नहीं था. इट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन. हाउ आर यू चूजिंग योर फिल्म्स? या आई मीन यू नो पीरियड हॉरर, शैलेस, आई मीन फेमिनिस्ट हॉरर, नाउ अ ट्रेजिक टेल ऑफ द गोल्डन एज. सिर्फ यहीं से फोन आता है तभी आप हाँ बोलती हैं. हाउ यू चूजिंग द फिल्म्स? How can you say no to Anvita that? That's out of question. But other than that, मुझे लगता है जो gut feeling होती है ना, it's a very real thing. And upon reading the script, अगर आपको लगता है कि नहीं, you don't agree to the script or to the character, then you should not get into it, because then it can go wrong for you and for the people who are associated with the project.
But luckily for me, that has never ever happened, and it can never happen if Anvita Dutt is involved and Clean Slate Films is involved. So yeah, I would say that I've been lucky. These films have chosen me, I believe. I have not chosen these films. So would you also describe that how different or how similar is Kala to you? She's very, very different. I'm not like her at all, please. But she is a very, very, very special girl. It was a lot of fun for both of us to, build her. She has given birth to Kala, and it was interesting for me to, get into her world, to see the world from her eyes. And yeah, it was a very special journey, something that I will cherish for life. Babil, heartiest congratulations, you're making a debut now. और मैंने ऐसा मुझे लगा बड़े मिस्टीरियस से कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं. अभी तो आप बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, आप इतने प्यार से स्माइल कर रहे हैं. वहाँ पे थोड़ा सा आंखों में है कुछ. तो भाई क्या मिस्ट्री है, प्लीज हमें समझाएं. सर मिस्ट्री तो पता नहीं मुझे, वो आंखों में आ गई तो आ गई. बट द वन नोट दैट मैम गेव मी वाज दैट जगन इज गॉड पार्टिकल, एंड I think that comes out in his innocence and his complete dedication to his craft and his art. I think that's that. और आपके साथ बैठे हैं OTT के अमित जी. अमित जी कैसे हैं आप? नहीं नहीं अमित ही बोलूंगा ना. बता OTT पे अमित जी हटा दे यार. ठीक अमित ठीक है. अमित भाई, OTT के अमित भाई, मेरे को ये पता लगा है कि नेटफ्लिक्स के सेट पे आपकी वैनिटी खड़ी होती है. एक शो से निकलते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे से. ऐसा कुछ है आपका? ऐसा हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा यार. अभी तक तो नहीं हुआ है. मैं सिर्फ ऐसी बातें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ. करो देखिए अच्छी बात है ना. प्लीज करो. इतना खूबसूरत माहौल, ऐसी बेहतरीन दुनिया क्रिएट की हुई है. आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस किरदार के बारे में जो आपने हामी भरी? यार मेरे दोस्त हैं अनमोल, बैठे हुए वहाँ पे. तो इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी ये, और अन्विता जी ने, बता दूं क्या स्टोरी? वो काफ़ी फनी है ना. तो ये प्लीज ये कुछ तो कास्टिंग वास्टिंग चल रही थी. तो आई थिंक अन्विता जी ने अनमोल से बोला कि मुझे ना ऐसा अमित जैसा चाहिए कोई ये रोल करने के लिए. तो फिर अनमोल ने कहा कि अमित से ही बात कर लेते हैं ना. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और इन ऑल सीरियसनेस स्क्रिप्ट पढ़ी, और मैं स्क्रिप्ट रख नहीं पाया नीचे. और कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ फिल्में होती हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपको करना ही करना चाहिए काम. तो आई थिंक अन्विता उनमें से एक हैं. मैंने बुलबुल देख रखी थी, और आर्टिस्ट हैं, और अपनी फिल्मों में फिल्म नहीं कह के पोएम्स कहती हैं फिल्म के थ्रू. तो मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना था, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस फिल्म में लिया. और I think script was the king, and then obviously the people that I was going to work with, and yeah, that's it. सर कह रहे हैं स्क्रिप्ट इज द किंग. आपने जब ये स्क्रिप्ट इज द किंग वाली बात सुनी तो आपके मन में क्या आया कि आपने झट से हाँ करी कि आपने कहा कि यार ये पंगा हो जाएगा थोड़ा लंबा? नहीं, एक्चुअली ये फिल्म बुलबुल से भी पहले शायद से लिख चुकी थी अन्विता. तो तब से उनका ये मन था फिल्म बनाने का. और कहानी इतनी स्पेशल थी, इतनी लेयर्ड थी, बहुत साइलेंसेस हैं कहानी में, कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है, द वर्ल्ड इज़ इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक जैसे अमित ने कहा कि पोएट्री है अन्विता की डायरेक्शन में, स्टोरी टेलिंग में. सो ना कहना तो बहुत मुश्किल था, बट आई थिंक उसके बाद जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये हम फिल्म आगे बढ़ाएंगे, तो उसके बाद बहुत मेहनत हुई फिल्म लिखने में. आई थिंक हमने 15-18 ड्राफ्ट कर रखे. 19 ओके, मैंने 15 ही पढ़े थे. मैं वही कह रहा हूँ, प्रोड्यूसर कह रहा है पहले 15 दिखाओ यार, बाकी ठीक है. तो आई थिंक वो प्रोसेस था, वो प्रोसेस अन्विता के साथ काम करने का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग होता है. ना सिर्फ कहानी पे, बट वर्ल्ड बिल्डिंग का जो उनका प्रोसेस है. सो उनका आर्ट कैसा होगा, उनका म्यूज़िक कैसा होगा. सिद्धार्थ दीवान उनकी फिल्म में रहते हैं, तो वो वहीं थे, तो वो आए. सो बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार प्रोसेस है अन्विता के साथ फिल्म बनाने का. तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि
पूरा माहौल कैसा रहेगा. आई थिंक one of the most important aspect of this film has been music, because it is music which takes you back in that era and there is the soul. और जब बात ड्रीम टीम की कर रहे हैं, आपने भी कहा कि भाई हाँ हो गई सब चीज़ों की, और बहुत कम बार ऐसा होता है कि इतने दिग्गज एक साथ एक फिल्म में आते हैं. So ladies and gentlemen, it's time that I'd like to invite on stage, क्योंकि कला की जब हम बात कर रहे हैं, this machine, the time machine. Hello. Congratulations, आज आप प्रेजेंटेशन आपका है यहाँ पे NBT में और आप परफॉर्म भी कर रहे हैं. 72nd year. What do you have to say? I think it's incredible that हम यहाँ आए हैं आज and we are able to perform. So I must tell you all something. We started our journey as choreographers and dance directors and reality shows and stuff. But the pioneer of acro zeal, that is acrobatia, which came to India, जो हम आप देखते हो हवा में उड़ रहा है, अभी से गिर रहा है, so it was him, that's Divakar, and I'm glad and very excited that we are going to perform today. Yes, we are very fortunate. क्या कहना चाहिए? So as I said, we are very fortunate कि it's been almost 10 years हमने जर्नी स्टार्ट किया था and we did so many shows and आज भी वापस हमें लोगों को वापस हमारा अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा. So I think we are also very lucky. कुछ खास परफॉर्मेंस आज? जैसे it's Navbharat time, so we wanted to bring the ethnicity of our country, of अपना भारत. So there is an Indian touch to it that जो आज हम perform करने वाले हैं, and I just really hope everybody likes it. Thank you so much. Thank you. Hi. Yes. Good, how are you? Start from you, You're looking gorgeous. Navbharat Times has been a very integral part of our lives, especially in Mumbai. और उसका 72nd year है. जी. क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक ये बहुत ही हमारा सबसे सीनियर और पुराना इस्टेब्लिशमेंट रहा है और इंस्टीट्यूशन रहा है. जहाँ तक कि मीडिया का सवाल है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनफैक्ट मैं भोपाल में शूटिंग कर रही थी, इसलिए मैम बोल रहे थे कि आप आए भोपाल से इस इवेंट के लिए. आई थिंक जहाँ पे सीनियरिटी होती है और जहाँ पे इंटेग्रिटी होती है उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है. आई थिंक आई एम हियर विद ऑल दैट ड्यू रिस्पेक्ट फॉर नवभारत टाइम्स. यस. Any memories with Navbharat Times? Always, I think right from the beginning. Luckily, Navbharat Times has never been कि मुझे याद हो पहले कि 90s में कि gossipy, yellow journalism या कुछ ऐसे articles हो. Always straight facts होते थे और अच्छे positive articles होते थे, and I think इसलिए वो credibility भी बढ़ती है, and that's why you feel like doing what you do. रेखा जी, रवीना जी ने बताया, आप क्या मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? मतलब रवीना जी के बारे में तो मतलब कभी क्या वो गाना जो है ना, देखते ही तुमसे प्यार हुआ, तो वो वाला गाना जो है बोलते ना कैसे दिल में एक घंटी बजती है, तो आज भी वही है, वही रवीना जी का जलवा है. और ओवर द ईयर्स क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, एंटरटेनमेंट में हैं और देखते जाते हैं कि एक कलाकार कैसे निखरता जाता है, संवरता जाता है,
दमन में जब उनका काम था, जब नेशनल अवार्ड मिला, ये जितना भी उनका बॉडी ऑफ वर्क है, चाहे वो सामाजिक सरोकार की फिल्में हों या एंटरटेनमेंट मसाला फिल्में, हर जगह रवीना जी का एक वो रहता है, जलवा रहता है। आरण्य अभी जो आया था उसमें भी बहुत सुपर्ब काम हुआ है। तो हमें लगा कि पार एक्सेलेंस जो एक्ट्रेस हैं वो अवार्ड जो जाना चाहिए वो रवीना जी को ही मिलना चाहिए, वो उसकी हकदार है। KGF 2 के बारे में हाँ, और KGF 2 तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, अभी मैं आ रही थी तो उनके बारे में बोल रही थी। नहीं, हमने पूरे आपकी इंट्रो में पूरा वो लिखा है आर्टिकल में, और उसमें मतलब एक कहते हैं ना कि वो एक अलग ही तरह का रोल, जो कि रवीना टंडन का एक बहुत ही अलग रोल हमें देखने को मिला। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। नहीं, जब एंटरटेनमेंट एडिटर साथ में हो और जो रवीना का इतना बड़ा फैन हो, तो फिर आपके लिए हमारा कहना बनता है। आप हमारी मेहमान हैं, अवार्डी हैं। मैं बस एक नवभारत टाइम्स उत्सव जो हम कर रहे हैं, NBT उत्सव 2022, ये एक उम्मीद हमारे लिए लेकर आया है पैंडेमिक के बाद। बस ये जानना चाहते हैं कि आप कैसा फील कर रही हैं इस पूरे समारोह का हिस्सा बनकर? मैं बहुत खुश हूँ, और जहाँ तक कि इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट का सवाल होता है, तो नवभारत टाइम्स अब 72 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, और वो उत्सव इसलिए भोपाल से आई हूँ यहाँ बनाने के लिए शूटिंग के बीच में। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे याद किया, एंड आई होप वही रिस्पेक्ट और वही रिश्ता हमारा हमेशा कायम रखे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अनदर ग्रेट 72 इयर्स। आप और मैं शायद हो ना हो, बट अनदर ग्रेट 72 इयर्स है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, चलिए, थैंक यू। आइए। हंसा जी का तो कहते हैं ना कि हंसा जी का कद इतना बड़ा है कि इनके इंट्रोडक्शन में योग के लिए उन्होंने इतना काम किया है कि इनके लिए तो एक पूरा पुराण लिखा जा सकता है। और अपने पूरे व्यस्त शेड्यूल से और पूरा कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में एक योग का अलग जगाने के बाद हंसा जी आप यहाँ पर हैं हमारी 72वीं सालगिरह पर, आप कैसा महसूस कर रही हैं? अरे NBT ने जो इतना काम किया है, मैं जब छोटी सी थी ना तब से हमारे यहाँ नवभारत टाइम्स आता ही रहा है, और तब से जुड़ी हुई हूँ मैं। हमारे और कुछ नहीं आता था, नवभारत टाइम्स ही आता था घर पे, और बाबूजी हमेशा कहते थे वो ही पढ़ो, क्योंकि उसमें जो न्यूज़ होगी वो सच्ची न्यूज़ होगी। बाकी तो लोग कुछ बोलते कुछ है, पेपर में छपता कुछ है। तब से हमारा संबंध है, और अब तो इतना ज़्यादा संबंध जुड़ गया है जब से सुंदर जी इंस्टीट्यूट में आए, और उन्होंने जिस तरह हमारे साथ आगे योग सीखे वो, और अच्छी तरह सारे क्लास में बैठ के लेक्चर्स बाकायदा सुने और तो ये तो इतना अच्छा लगा कि जब एक ऐसे अच्छे पत्रकार अगर इस स्थिति में है कि वो और सीख रहे हैं, सही स्थिति में आ रहे हैं, तो वो एक अच्छे इंसान होंगे और संसार में अच्छा ही सब करेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए नवभारत में जो आर्टिकल्स देते रहे हैं जी, और वो सब बहुत रेगुलर देते रहे हैं। मेरा आर्टिकल हर संडे को देते हैं जी, और हर मंडे को वो स्पीकिंग ट्री में भी मेरा आर्टिकल आता है। तो हंसा जी आपका सम्मान, हंसा जी का सम्मान हमारा सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इधर आने के लिए। सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप बहुत शुक्रिया। डेडिकेटेड सर्विस है आप सब लोगों की, तभी तो काम अच्छा बढ़ रहा है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। प्लीज आप पधारें जी, आइए आइए। To see the durability and strength of the NBT brand, so wonderful to be associated. Yeah, as I said, you know, it's a lot older than I am, so I think since I've been a kid, we look forward to, you know, our parents and being associated with it. But it's a great pleasure to be here at this milestone. Thank you. बोलना क्या है? बोल दीजिए ना, बोल दीजिए। तो ये वार्षिक कार्यक्रम है, मतलब ये जयंती वाला है। आज नवभारत टाइम्स का 72वां जन्मदिन है, और इस मौके पे हर साल एक जन्मदिन का समारोह होता है, और इस
समारोह में मैं आया हूँ और नवभारत टाइम्स का समारोह ऐसा लगता है हमारे घर का समारोह है, हमारे घर का अखबार है, हम सब नियमित पाठक हैं, ये हमारा अखबार है। तो नवभारत टाइम्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। नवभारत टाइम्स में काम करने वाले हमारे तमाम साथियों को उनके अखबार के जन्मदिन के मौके पर बहुत बहुत बधाई।